Hello everyone, this is Nikat Parveen, Faculty of Pavitra Institute of Health Sciences. आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस में TLD, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर। TLD badge, thermoluminescent dosimeter, is used currently in India instead of film badge. It is based on the phenomenon of thermoluminescence. In this, the emission of light when certain materials are heated after radiation exposure. In early 1960s, Cameron and his co-worker from University of Wisconsin developed the TLD badge. It is used to measure individual dose from X-rays, beta rays and gamma radiation. Currently, इंडिया में अब फिल्म बैच की जगह पे TLD बैच यूज होता है। हमारा जो TLD बैच है वो एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जिसे हम थर्मोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अगर TLD बैच को रेडिएशन एक्सपोजर हो गया है और फिर उसको हम हीट करते हैं तो ये लाइट एमिट करते हैं। ये जनरली एक्स-रेज, बीटा रेज एंड गामा रेडिएशन को मेजर करने में हेल्पफुल है। TLD badge. The response is directly proportional to the amount of radiation. Dose not respond to individual ionizing events, hence cannot be used as rate meter. Ranges from 0.2 MSV to 10 SV. TLD badge can cover a wide range of dose from 10 mR to 10,000 Roentgen with the accuracy of 10%. जितना हम आपकी TLD बैच को रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं सेम उतनी ही अमाउंट ऑफ लाइट उससे एमिट होता है जिससे हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। इसका रेंजेस जो हमारा TLD बैच कितने रेंज तक रीड कर सकता है तो 0.2 MSV से लेकर के 10 MSV। So let's look out the construction of TLD batch. It comprises of two things. First one is TLD card and the second one is TLD cassette. This TLD card is enclosed by a paper wrap on which user's personal data and period of use is written. This pouch protects the card from radioactive contamination while working with the open source. Disk is reusable after proper annealing. ये जो TLD कार्ड है इनके ऊपर एक पेपर रैप होता है जिसमें रेडियोग्राफर के पर्सनल डेटा और पीरियड ऑफ यूसेज लिखा रहता है। ये कार्ड प्रोटेक्ट करता है आपको रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन से। ये डिस्क रीयूजेबल होता है जो इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट इज TLD कैसेट। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, फिल्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ईच डिस्क, सर्कुलर ओपन विंडो फॉर एक्स-रेज एंड बीटा रेज। हमारा जो TLD कैसेट है वो कॉपर का बना हुआ है। इनमें बहुत सारे फिल्टर्स यूज होते हैं हर एक डिस्क पे और इनके पास एक सर्कुलर ओपन विंडो है जिससे डायरेक्टली एक्स-रेज और बीटा रेज एंट्री कर सके। When the TLD card is placed properly in the cassette, it comprises of three discs. First disc sandwiched between pair of metallic filter, second disc is sandwiched between plastic filter, and third disc is positioned under a circular open window. हमारी जो फर्स्ट डिस्क है D1 वो मेटालिक फिल्टर के बीच में प्रेजेंट होती है, जो D2 है वो प्लास्टिक फिल्टर्स के बीच में प्रेजेंट होती है और जो थर्ड डिस्क है हमारी D3 वो सर्कुलर ओपन विंडो के नीचे पोजीशन की जाती है। So let's talk about working of the TLD. It is divided into two parts, exposing the TLD and reading the TLD. TLD जब रेडिएशन में एक्सपोज होता है और जब एक्सपोज होने के बाद उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ये इसके दो तरह के वर्किंग्स हैं। Exposing the TLD. When the TLD is exposed to the radiation, electrons absorb the energy and jump to conduction band from the valence band. Excited electrons lose a part of their energy and are trapped in the forbidden energy gap. This trapped electron stores the remaining energy. So, mechanism क्या है? When the TLD exposed to the radiation, उसके जो electrons होते हैं वो energy को absorb कर लेते हैं। एब्सॉर्ब करने के बाद वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के पास जंप कर जाते हैं।
कुछ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर जाते हैं और वो फॉरबिडन एनर्जी गैप में ट्रैप हो जाते हैं। यही ट्रैप इलेक्ट्रॉन एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म आफ्टर एक्सपोजिंग द TLD आता है reading the TLD. So when this TLD card is heated in the TLD reader, the trapped electron absorb energy and are released from trap zone and are returned to their ground state. While returning to the ground state, light is emitted which is captured by PMT tube and converted into digital signal. अब हमारा जो TLD है रेडिएशन से एक्सपोज हो चुका है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनर्जी गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप में प्रेजेंट है वो वहाँ से अब रिलीज होते हैं और अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। इस ट्रांसफर के टाइम पे जो लाइट का एमिशन होता है वो हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कैप्चर करता है और उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। TLD रीडर। हम TLD रीडर के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। TLD reader is the instrument which is used to read TLD card. Reader has a heater, photomultiplier tube, amplifier and a recorder. TLD disc is placed in the heater cup or planchet where it is heated for producing heating cycle. While heating, the electrons return to their ground state with the emission of light. TLD reader एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो TLD कार्ड को रीड करने में हेल्पफुल है। इसके पास एक हीटर है जो कार्ड को हीट करेगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, जो भी लाइट एमिशन निकल करके आ रही है उनको ये सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, एम्पलीफायर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा और जो सिग्नल्स एम्पलीफाई हो चुके हैं वो रिकॉर्डर रिसीव करके हमें डेटा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो TLD डिस्क में हीटर कप में आप अपना TLD रखेंगे जहाँ पर वो हीट होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से हीट होने के बाद ग्राउंड स्टेट में आएंगे और लाइट को एमिट करेंगे। अब जो यही एमिटेड लाइट है वो PMT ट्यूब मेजर करता है और उसे कन्वर्टेड लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। फिर ये सिग्नल एम्पलीफायर के पास जाकर एम्पलीफाई होते हैं और फिर जो टोटल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है वो रिकॉर्डर रिकॉर्ड करेगा। द रीडर इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ MR और MSV सो दैट वी कैन गेट डायरेक्ट डोज एस्टिमेशन। जो रीडिंग आती है या तो वो रोंटgen में होती है या फिर सिवर्ट्स में होती है, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट डोज का एस्टिमेशन हो जाता है। ये सब मेजरिंग यूनिट है। TLD ग्लो कर्व। TLD रीडर में जो मेजरमेंट्स आती है वो ग्लो कर्व के बेसिस पे ही हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना TLD में एक्सपोजर डोज रिसीव हुआ है। तो several prominent peaks occur in graph because of specific electron transition in TLD crystal. जब TLD crystals हीट होते हैं फिर उनमें से जो लाइट एमिट होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा prominent peaks रिसीव होता है एक ग्राफिकल स्केल में। Height of the peak and the total area covered under this is directly proportional to the energy deposited in TLD by ionizing radiation. ये ग्लो कर्व एक्स-रेज, बीटा रेज, गामा रेडिएशंस की वजह से क्रिएट होता है। TLD एनालाइजर्स आर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर द हाइट ऑफ द ग्लो कर्व और एरिया अंडर कर्व। जो TLD एनालाइजर्स हैं इसी ग्लो कर्व को एनालाइज करके मेजरमेंट करते हैं, फिर हमें एक एस्टिमेटेड एक्सपोजर डोज कैलकुलेट होकर के रिसीव हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ TLD बैचेस। कितने टाइप के TLD बैचेस है? चेस्ट बैच, रिस्ट बैच, फिंगर डोजीमीटर। होल बॉडी के लिए चेस्ट बैच होता है, रिस्ट बैच एक्सट्रीमिटी डोज के लिए और फिंगर डोजीमीटर फिंगर डोजेस के लिए। टाइप्स ऑफ TLD मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो थर्मोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हीं को TLD बैच में इंक्लूड करते हैं। नेचर में मोर देन 1000 डिफरेंट थर्मोल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स हैं, बट कुछ मेडिकल डोजीमेट्री के लिए यूजफुल हैं, जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम बोरेट, मैग्नीशियम बोरेट एंड बेरिलियम ऑक्साइड। एडवांटेजेस क्या है TLD के? तो रिलेटिवली गुड एनर्जी इंडिपेंडेंस,
उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो टिश्यू के इक्विवेलेंट होते हैं। ये लाइट से बहुत ही विजिबल लाइट से कम अफेक्टेड होते हैं, मॉइस्चर से जल्दी खराब नहीं होते या मैग्नेटिकल वाइब्रेशन से भी ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। ये रीयूजेबल होते हैं। वन कार्ड को आप 100 टाइम्स यूज कर सकते हैं। सो वन कार्ड कैन बी यूज फॉर 300 मंथ्स, यानी 25 ईयर्स तक आप एक सेम कार्ड को यूज कर सकते हैं। ये आपका नेचर फ्रेंडली भी है। Next, it is more sensitive, more accurate than film batch and gives reliable result because no fading is observed due to changes in environmental conditions. Properly calibrated TLT monitors can measure exposure as low as 5 mR, can be worn for intervals up to 3 months at a time. जो टीएलडी बैच है हमारा ज़्यादा सेंसिटिव है और फिल्म बैच के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है। इसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज ना होने वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये काफ़ी रिलायबल भी है। प्रॉपरली कैलिब्रेशन की वजह से हमें 5 mR से कम मेजरमेंट रिसीव होती है और हर 3 मंथ्स के बाद आप इसको भेज सकते हैं सेंटर्स पे रीडिंग के लिए। Disadvantages of TLD. This card doesn't provide permanent record like film batch, does not give instantaneous result. Primary disadvantage of TLD personal monitor is cost, but due to reuse it is cost effective. Instrumentation for reading TLD batch is expensive. Price is perhaps twice that of film batch monitoring. Skilled trainers experts are required to run the service. सो डिसएडवांटेजेस, ये हमें परमानेंट रिकॉर्ड फिल्म बैच की तरह प्रोवाइड नहीं करता है। हर 3 मंथ्स के बाद आपको कार्ड की रीडिंग मिलती है, तो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट भी इसमें नहीं मिलते हैं। फिल्म बैच के कंपैरिजन में ये महंगे तो हैं, बट ये 25 ईयर्स तक रीयूज हो सकते हैं, सो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इनके लिए स्पेशल रीडर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिल्म बैच के कंपैरिजन में ये 2 गुना ज़्यादा महंगे हैं। आपको रीडिंग के लिए स्किल ट्रेनर्स की भी नीड रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो इसका सर्विस रन करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये इसकी मेनली डिसएडवांटेजेस हैं। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग TLD बैच. So TLD batch are used only by person directly working in radiation. Administrator, darkroom assistant, sweeper, etc. did not to be provided with TLD batches. TLD batch is used to measure the radiation dose. It does not protect the user from radiation. So guidelines में TLD batch जो डायरेक्ट वर्क कर रहा है एक्सपोजर में, आयनाइजिंग रेडिएशंस में, सिर्फ उन्हीं को ही ये यूज़ करना है। जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो डार्क रूम में काम करते हैं, आउट ऑफ एक्सरे सोर्स के जो बाहर काम करते हैं, जो वहाँ पे GDA स्टाफ है, उनके लिए ये नहीं बना है। TLD बैच एक ऐसा डिवाइस है जो रेडिएशन डोज को मेजर करता है, ये किसी तरह से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। So on TLD card, name, personal number, type of radiation is measured, period of use, type of badge should be written in capital letters on the front side of the badge. TLD badge is issued to a person should not be used by any other person. TLD badge should be worn compulsory at the chest level. If left apron is used, TLD should be worn under the lead apron. TLD card पे जो भी रेडियोग्राफर है उसका नेम, आईडी कार्ड नंबर, जिस तरह का रेडिएशन वो मेजर कर रहा है, जैसे एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, चेस्ट बैच है कि रिस्ट बैच है कि फिंगर बैच है, ये सब चीज़ कैपिटल लेटर में बैच के फ्रंट साइड में लिखा होना चाहिए। TLD बैच जिस भी पर्सन को इशू हुआ है उसके अलावा किसी और पर्सन को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। अब TLD बैच हमेशा चेस्ट लेवल के पास पे यूज़ करना चाहिए अगर वो होल बॉडी को मेजर कर रहा है। तो अगर आपने लेड एप्रन पहनी हुई है तो अंडर द लेड एप्रन आपको उसे पहनना है, ना कि लेड एप्रन के ऊपर। Each institute should keep one TLD batch as control to assess background radiation level. हर एक इंस्टीट्यूट, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, एक एक्स्ट्रा बैच ऐसा कंट्रोल रखना चाहिए बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल को मेजर करने के लिए।
A batch without filter or damaged filter should not be used. It should be replaced by a new holder. अगर बैच में फिल्टर प्रेजेंट नहीं है या फिर डैमेज हो चुका है तो आप इमीडिएटली उसको रिप्लेस कराइए. All used or unused TLT batches should be returned after service period of 3 months. जो यूज हो चुके हैं, जो अनयूज TLT बैचेस है, उन सबको सर्विस सेंटर में वापस से रिटर्न करना चाहिए 3 मंथ्स के बाद. And the last thing that should be kept in mind while leaving the premises of the institute, workers should deposit their badge in the place where controlled TLT is placed. Worker must ensure that the badge is not left in radiation field or near hot plates like furnaces, ovens and burners. जब आप अपना वर्क करके कंप्लीट करके घर जा रहे हो या फिर लीव कर रहे हो इंस्टीट्यूट को, तो आप अपना बैच कंट्रोल रूम में रख कर के जाएं. आप रेडिएशन फील्ड में जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जैसे एक्सरे रूम में, सिटी स्कैन रूम में, वहाँ पर छोड़ कर के नहीं जाएं. या फिर जो हॉट प्लेट्स एरियाज हैं, अवन्स के पास में है, वहाँ पर आपको इसको लीव नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो TLT कार्ड है वो ख़राब हो सकती है या ओवर एक्सपोज हो सकती है. इन सब चीज़ का इम्पोर्टेंटली एज अ रेडियोग्राफर आपको ध्यान रखना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.